ओके, स्टार्ट करते हैं। सो रेडियो एक्टिविटी का कुछ पार्ट हमारा रह गया है, तो क्विकली मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम्स वगैरह हमने किए थे। देयर कैन ऑल्सो बी सिनेरियोज वेयर लेट्स से, आई थिंक मैंने तुम लोगों को दिया था एक प्रॉब्लम, है ना, वो प्रोड्यूस हो रहा है अल्फा रेट से, और वो कर लिया था क्या हमने? हाँ यस सर। ठीक है, तो एक चीज ये हो सकती है कि तुम्हारे पास सीरीज डीके हो रहा हो, और सीरीज डीके इस टाइप से हो रहा होगा कि लेट्स से देयर इज सम ए which is decaying with a decay constant of lambda 1 into some b, and b is also radioactive, is also unstable, and at the same time as b is formed, it is decaying simultaneously with another decay constant into something c, which is, let's say, stable, the end product. So that's not decaying any further. And let's say at t equal to 0, we have some amounts of these on the table. So the question is कि भाई t equal to t पे ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है? तुम लोग ट्राई कर सकते हो पहले इसको? यस सर। करो एक Yes, बार, sir. डू ट्राई दिस आउट। Basically, sequential kinetics है ना ये. हाँ, सर होस्ट या कोहोस्ट पे भेजना।
Good morning. एकांश करेक्ट है, मिराज करेक्ट है, बी और सी भी फाइंड करो. ठीक है, एकांश बी भी करेक्ट ही लग रहा है. रिदम अपना आंसर में चेक करो कि क्या टाइम 0 पे बी नॉट देता है वो या नहीं. चिन्मय ये करेक्ट है. पिनाक, मिराज, हाँ प्रणव लंबा आंसर आएगा बी और सी का. Also, before you write the answer, you can do a sanity check on the answer. Your expression for BT should give you B naught when you put time equal to 0. And your expression for CT, all three expressions should give you A naught, B naught, C naught with time equal to 0. And with time equals to infinity, what should this give you? Zero. What should this give you? B naught. नहीं, time equal to infinity पे पूछ रहा हूँ. Oh, sorry, sir. This should also give you 0. And what should this give you? A naught plus B naught plus C naught. Correct? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कंजर्व्ड ही हैं. वो A का B बन जाता है, B का C बन जाता है, बट यू स्टार्टेड विद A naught plus B naught plus C naught particles. So at the end of the story or at any time also,
you should have A naught plus B naught plus C naught particles. Another way to check would be that AT plus BT plus CT should be A naught plus B naught plus C naught, which means that if you have found AT and BT, you should not really do any kind of extreme calculation for finding CT. CT is simply A naught plus B naught plus C naught minus AT minus BT. The sum of these three at any time must be A naught plus B naught plus C naught, including at infinity when these two are सिर्फ 0. तभी बोल पाएंगे जब इस सबका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना. हाँ वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे तो 1 to 1 में चेंज हो रहा है ना. हाँ. ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम लोग पहले इसको ब्रॉडली रीजन आउट कर सकते हो बिफोर यू राइट द इक्वेशंस एंड गेट एनी वैल्यूज. ठीक है रिदम, करेक्ट. Sir, answers host पे भेजना ना. हाँ चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ. Sir, 1 minute. ठीक है.
So the way to do this would be to write differential equations and solve. A का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, A क्योंकि B में डीके हो रहा है, A को मतलब नहीं आगे क्या होता है उससे, तो AT तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. AT इज सिंपली A नॉट e की पावर माइनस लैम्डा वन टी. वो लैम्डा वन रेट से B में डीके हो रहा है. दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी फॉर A. B का स्टोरी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि B जो है, एक तो पहले से देयर इज सम B, and if you leave that aside, at any given time B is concurrently being formed from A and decaying into C. So this process A to B basically causes an increase in the amount of B, and this process B to C decay causes a decrease in the amount of B. And they might be at different rates also, so it might be the case that lambda 1 is a very large number, so that A rapidly decays into B. तो जो B का पाइल है और B जो है स्लोली डीके करता है C में, तो हो सकता है कि पहले जो है A बहुत रैपिडली फिनिश अप हो जाए इनटू B और फिर B जो है स्लोली C में डीके करे. या ये हो सकता है कि ये ज्यादा फास्ट डीके है, ये स्लो डीके है, तो बॉटलनेक हो जाता है उसमें कि भाई A से पहले B बन ही रहा है स्लोली, सारा B डीके हो गया खटाक से, तो जब तक A से बनेगा B फिर वो डीके होगा, जैसे ही वो बनता है वो डीके हो जाता है. दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा. But if I want to write the differential equation that tracks B through time, then I will have to say dB by dt. And if I'm treating it as a positive, then that is basically helped by. सर ने तो B को सीधा से नहीं लिख सकते क्या कि A नॉट माइनस AT प्लस वैसे B का फंक्शन लिख देंगे. A naught minus AT लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं. सर A नॉट माइनस AT प्लस B नॉट इंटू E की पावर माइनस लैम्डा 2t वैसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते. A naught minus AT प्लस जो ये डी के हो रहा है. हाँ सर. नहीं, इसमें B naught से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो अमाउंट वेरी कर रहा है ना. राइट, समझ गया. राइट, तो तुम ये लिख सकते हो कि dA by dt, dB by dt जो है dA by dt से ऐड हो रहा है, मतलब dA by dt जो है खुद एक नेगेटिव नंबर है, तो अगर मैं इस पे माइनस साइन लगा दूं तो ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. और dC by dt जो है एक्चुअली नहीं, जो तुम बोल रहे हो वो भी करेक्ट है. दैट विल आल्सो गिव यू द सेम थिंग. दैट्स आल्सो फाइन आई थिंक. तो वो भी इसके इक्वल होगा. हाँ, आ ही जाएगा उससे भी, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ और dC by dt प्लस है, तो उसको माइनस करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर. तुम लोग समझ रहे हो ऐसा क्यों? जिस रेट से C बढ़ रहा है उस रेट से एक तो B कम हो रहा है, तो दैट इज अ नेगेटिव कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू dB by dt. अग्रीड? Yes, और sir. जिस रेट से A कम हो रहा है, क्योंकि dA by dt नेगेटिव है, उसको माइनस करके प्लस बना सकते हैं, तो उस रेट से B बढ़ रहा होगा. मतलब this is the cause of an increase of B and this is the cause of decrease of B. Do you understand why both have negative sign? Yes. Because dC by dt is positive, so I have to make it negative, because the rate at which C increases is the rate at which B decreases. I mean, it's a contributor to the rate of decrease of B. And the rate at which A decreases, which is itself a negative number with a minus sign, makes it a positive number, so that's the rate at which is really just a restatement of this fact, that d by dt of A plus B plus C is 0, which is true because A plus B plus C is a constant. Does it make sense? तो अब इस इक्वेशन को फिर मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि dB by dt जो है माइनस dA by dt तो हम लिख ही लेंगे, AT हमें पता है, तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो हो जाएगा लैम्डा 1 A नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 1t. ठीक, दैट्स dA by dt. और C किस तो रेट से, दोनों जगह माइनस कैसे आया? वही मैंने एक्सप्लेन किया ना अभी. dC by dt पॉजिटिव है, यस सर. जिस रेट से C बढ़ रहा है, तो उस रेट से B कम होना चाहिए, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा. हाँ सर, हाँ. और dA by dt नेगेटिव है, A कम हो रहा है टाइम के साथ, तो dA by dt नेगेटिव है, लेकिन A जिस रेट से कम हो रहा है उस रेट से B बढ़ रहा है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए प्लस माइनस लगाया. यस सर, समझा. This increases B and this decreases B, so their combination produces the change in B, whether increase or decrease over time. यस सर, अंडरस्टूड. थैंक यू. ठीक है.
और dc by dt को हम कैसे लिख सकते हैं? dc by dt को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि c का बनने का रेट वही है जो b का डीके होने का रेट है। तो b किसी टाइम पे किस रेट से डीके हो रहा है? dv by dt। नहीं, वो तो फाइंड ही करना है ना, वो नहीं लिख सकते हैं। और उसके इक्वल होगा ना। नहीं, उसके इक्वल नहीं होगा। b के डीके के इक्वल है। db by dt तो b का टोटल अमाउंट ट्रैक कर रहा है, जिसमें b बढ़ भी रहा है और कम भी रहा है। हाँ राइट। c केवल b के डीके से बन रहा है। dB by dt is not the decay of B. dB by dt is the time rate change of the number of B particles, which is a combination of increase of B due to decay from A and decrease of B due to decay into C. That is the whole thing. But the rate at which C is forming is simply the rate at which B is decaying, which you can write as B lambda 2B. Agreed? Where b is The number of particles of B at time t. us। है ना? लैम्डा, ये याद है, dn by dt जो है वो हम ऐसे लिखते थे माइनस लैम्डा एन। तो वही तो एक्टिविटी होता है, उसी रेट से वो पार्टिकल खत्म हो रहे होते हैं। तो बी हाँ। पार्टिकल किसी टाइम पे अगर बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो वो लैम्डा 2 बी रेट से डीके हो रहे होंगे। बी को अभी हम नहीं लिख सकते हैं बी नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 2 टी, राइट? क्योंकि वो तो बढ़ भी रहा है और कम भी रहा है, वही निकालना है। बट जो भी बी है उस समय, जितने भी बी हैं, इनटू लैम्डा 2 इज द रेट एट विच दे आर डीकेइंग इनटू सी। डू यू ऑल फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? यस। ये इक्वेशन सबको समझ में आ गया? प्लस होगा ना, माइनस का माइनस हो गया। नहीं, बी तो पॉजिटिव नंबर है, तो डीबी बाई डी में से वो घटना चाहिए। माइनस लैम्डा एन है और डीसी बाई dt का भी माइनस साइन था ना, प्लस हो नहीं, जाएगा। डीसी बाई डी टी प्लस लैम्डा एन है ना, हाँ तो वहाँ पे प्लस होगा ना। तो इसलिए माइनस हो गया ना, माइनस तो लगा हुआ है। डीसी बाई डी टी इज नॉट माइनस लैम्डा समथिंग, डीसी बाई डी टी इज अ प्लस थिंग बिकॉज डीसी बाई डी टी इज अ पॉजिटिव नंबर। इससे ओके मत देखो, ये तो बस एक सैंपल का डीके बता रहा है, तो वो तो माइनस होता ही है। लेकिन सी तो समझ बढ़ रहा है गया। ना, सी डीके तो होता नहीं है, Got it। सी केवल बढ़ता है। तो ये हो गया। किसी को कोई Sir, डाउट तो नहीं है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन? हाँ। so here, since the amount of B is B naught plus however much A naught has decayed, can't we put that instead of B with No, lambda 2? no. Amount of B is not B naught plus however much A naught has decayed. It is B naught plus however much A naught has decayed plus minus whatever has decayed into C. Right, okay. Got it, sir. Right. Got it. अभी ठीक है, सबको समझ में आ गया इक्वेशन? एनी इश्यूज? ये इक्वेशन तो क्लियर ही है बिकॉज दिस इज जस्ट अ रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज अ कांस्टेंट, एंड देन आई रोट this as this, and then I wrote the rate at which C is increasing is the rate at which B is decaying, and the rate at which B is decaying is always given by the rate at which any sample is decaying is always given by lambda times the current sample size, which is what we are trying to find, B as a function of time, right? This is what we are. अब इस इक्वेशन में b भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। हम इसको ऐसे तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि dt उधर ले जाएं, क्योंकि dt इसको तो इंटीग्रेट कर देगा, b को तो नहीं इंटीग्रेट कर पाएगा। टू मेक इट मोर obvious, let me put a t here. T is a function of time, but we don't know what function of time it is, so I can't just take dt there and integrate. So I will do this thing. I will bring dB by dt here, and I will bring that lambda 2 b also here. अब मैं बार बार t नहीं लिख रहा हूँ इसमें, but assume that b is a function of time, right? Is equals to lambda 1 a naught e की power minus lambda 1 t. ठीक है, करेक्ट है। और फिर यहाँ पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं कि इसको एक कंबाइंड वो प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का उल्टा करके, सो दैट बिकम्स अ कंबाइंड इंटीग्रल, लाइक दिस इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो क्योंकि लैम्डा 2 आगे चिपका हुआ है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मल्टीप्लाई द होल थिंग विद एन एक्सपोनेंशियल e की पावर लैम्डा 2t से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा e की पावर लैम्डा 2t dv by dt प्लस लैम्डा 2 e की पावर लैम्डा 2t b इक्वल्स टू लैम्डा 1 a नॉट e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t, करेक्ट?
तो ये आपको कैसे स्ट्राइक हुआ? ये कॉमन अप्रोच है, तुम जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे मैथ में तो तुम लोगों को भी ये कॉमनली स्ट्राइक करेगा। जब तुम्हें ऐसा दिख रहा होता है कि यहाँ डी भी लिखा है और डी टी लिखा है, उधर टी भी है और बी भी है, जनरली क्या होता है, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता है तो उधर what you want is either exclusively a function of x or exclusively a function of y, so that if it's exclusively a function of x you can take dx there and integrate that and integrate this on this side, or if it's exclusively a function of y you can bring it under dy and take dx that side. हाँ सर। But if that is a function of both x and y, then it can't either come under dy or go with dx, राइट। which is the problem here कि यहाँ db by dt लिखा है which is like dy by dx, but यहाँ पे t भी है और b भी है, तो ना ये तो पूरा चीज b के नीचे आ जाएगा और ना ये पूरा चीज t के साथ चला जाएगा। तो इसमें कॉमन अप्रोच ये होती है कि यू ब्रिंग इट हियर एंड देन यू ट्राई टू सी इफ यू कैन मेक द होल थिंग इनटू अ सिंगल डेरिवेटिव। और उसमें एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2t ही क्यों मुझे स्ट्राइक किया, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा 2 भी मल्टीप्लाइड है और एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज अ गुड चॉइस बिकॉज वो डिफरेंशिएशन करके वही चीज बनता है। यस। ठीक है, तो अब जब तुम इसको देखोगे लेफ्ट साइड को तो you can see that this can also be written as d by dt of b into e की power lambda 2t. Agreed? हाँ। वही लिखा हुआ है, और ये हो गया lambda 1 a नॉट e की पावर lambda 2 माइनस lambda 1t. अब ठीक है, अब dt को उधर ले लो क्योंकि उधर अब एक्सक्लूसिवली टाइम का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा d of b e to the power lambda 2t, और उधर हो जाएगा lambda 1 a नॉट e की पावर lambda 2 माइनस lambda 1 t dt. अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम 0 पे, अब यहाँ पे क्या है क्योंकि ये कंपाउंड डेरिवेटिव है, ऑब्वियसली इसका इंटीग्रल तो सिंपली डी हट जाएगा, इंटीग्रल डी को हटा देता है तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधी ये चीज बाहर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं बी और टी, तो दोनों लिमिट्स एक साथ लगाना पड़ेगा, पेयर में लगाना पड़ेगा। तो बी इनिशियली बी नॉट था और टाइम इनिशियली 0 था, और फिर लेटर टी टाइम पे टाइम टी होगा और बी भी होगा। तुम लोग समझ गए लिमिट्स कैसे लगाए? So then when you integrate this, you open up the whole thing, then you get b e to the power lambda 2t minus b naught, टाइम में 0 डालेंगे तो ये 1 हो गया, lambda 1 a naught lambda 2 माइनस lambda 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेट होके यही बन जाएगा, और इसमें आ जाएगा e to the power lambda 2 माइनस lambda 1 t माइनस 1, क्योंकि e की पावर 0 डाल के 1 बन जाएगा। तो अब जो है therefore bt बन जाएगा तुम्हारे पास, इसको उधर ले लो और e की पावर इससे डिवाइड कर दो, तो b नॉट e की पावर माइनस lambda 2t एंड प्लस lambda 1 a नॉट lambda 2 माइनस lambda 1, और तुमने e की पावर lambda 2t से डिवाइड किया तो वो यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस lambda 1t माइनस e की पावर माइनस lambda 2t. That is your b as a function of time, which you can check if you put time equal to 0, 1, 1, 1, 1 minus 1, 0, so you get b naught. And if you put time equals to infinity, this goes to 0, this goes to 0, this goes to 0, so 0 amount left. I don't need to remember this expression. You don't need to, but you just need to know how to write this expression in case this problem shows up as a problem. It's not a formula that you need to remember. And anyway, it might look complicated or you might feel like it's a long-winded problem, but this is just, I mean, once you learn integration and differential equations in mathematics, these are like, हम लोग का indefinite तो हो गया, definite चल रहा है। फिर तुम differential equations पढ़ोगे तो then you'll be like, obviously the most common approach in any time-based process is to form a differential equation. You write how it's changing with time, and if you can write it, then it's simply mathematical manipulation. ठीक है? And also you can check if lambda 2 is bigger than lambda 1, then your B is decaying faster into C, right? Then your B is decaying faster into C. So the moment a B forms, it decays into C immediately. तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि बीच में पाइल बन जाएगा B का थोड़ी देर और फिर पहले सारा A खत्म हो जाएगा B में और फिर B धीरे धीरे C में डीके करेगा।
ये वो केस है जिसमें b का डीके फास्टर प्रोसेस है, लैम्डा 2 लैम्डा 1 से बड़ा है, तो इसमें b का कभी पाइल बन ही नहीं पाता, b जो है मोनोटोनिकली डिक्रीज करता रहेगा। समझ रहे हो तुम लोग क्या कह रहा हूँ? तो वो तुम इस एक्सप्रेशन में देख सकते हो कि अगर लैम्डा 2 लैम्डा 1 से बड़ा है तो ये पूरा पॉजिटिव है, and then you can see that this function is a monotonically decreasing function. But if lambda 1 is bigger than lambda 2, meaning to say that this is the faster decay process, then actually b का total amount पहले b नॉट से बढ़ता होगा, b नॉट का पाइल बना हुआ है, तो पहले एक्चुअली वो बढ़ता होगा और फिर बाद में खत्म होता होगा. It will reach a maximum value also at some time, like if lambda 1 is bigger than lambda 2, because a will rapidly decay into b is still trying to decay into c, but since the input into b is bigger than the output from b, the pile of b increases over time, and then eventually this process is done because a has finished, and then b will take its time to decay into c. So if lambda 1 is bigger than lambda 2, then this is a negative number, so you can flip the sign and then see that function, and that will found to be a function with a global maxima. b का एक large एक maximum amount भी बीच में किसी टाइम पे बनता होगा और फिर उसके बाद डिक्रीज होता है. ठीक है, सबको क्लियर हो गया है? Yes, sir. And once you have bt and at, ct is trivial. ct तो वैसे भी तुम लिख सकते हो, या तो डिफरेंशिएट कर दो. ct can be found either by saying dc by dt was lambda 2 bt, और bt आ चुका है, तो बस एक बार इसको टाइम के साथ और इंटीग्रेट करना है पूरे को, सिंपल सा है, वही एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल बन जाएंगे. और ct is simply कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स भी आ जाएगा. ये लास्ट वाला चीज समझ गए तुम लोग? वही जो मैं बोल रहा था. हाँ सर. Yes. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. स्टार्ट तो तुम दोनों केसेस में बी नॉट से ही करोगे ऑन द टेबल, लेकिन एक केस में फिर वो बढ़ेगा और फिर कम होगा, और दूसरे में वो कम होता रहेगा. ठीक है. द अदर पॉसिबिलिटी इज अ पैरेलल डीके प्रोसेस. सर एक मिनट नोट करना है. डन सर. So can you show the previous page for just 1 minute? Done, sir.
Other possibility that can arise is a parallel decay. ये actually काफी simple सा है. This is when तो कभी कभी क्या होता है, तुम अगर डीके चेन्स देखोगे, गूगल कर सकते हो यूरेनियम का डीके U236 का डीके चेन, तो उसमें कई सारी जगह पे तुम्हें पैरेलल सीरीज डीके मिलेंगे. प्लूटोनियम रेडियम बन रहा है, और एक जगह तुम देखोगे जाके वो दो चीजें बनता है, बिस्मथ या पोलोनियम बन रहा होता है, विद सम प्रोबेबिलिटी, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड. सो दैट इज व्हेन ए सर चेन रिएक्शन कौन सा डीके होता है, सीरीज की पैरेलल? कौन सा? चेन रिएक्शन नहीं, वो उसका मतलब नहीं होता है सीरीज और पैरेलल. चेन रिएक्शन जो है एक अलग चीज है. चेन रिएक्शन होता है कि एक ही टाइप का न्यूक्लियस होते हैं बहुत सारे, तो प्रोडक्ट पहले वापस रिएक्टेंट बनता है वैसा वाला. एक न्यूक्लियस को फोड़ के दो बनते हैं रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट होते हैं उसके, तो वो एक पैरेलल डीके होता है. जैसे यूरेनियम स्प्लिट करता है इनटू बिस्मथ, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, लेट्स से, दैट्स अ पैरेलल डीके. ठीक है. हाँ सर. बट ऑल्सो मतलब एक रिएक्शन होगा फिर सीरीज में होगा. इसी रिएक्शन, वो नहीं सीरीज रिएक्शन है. सीरीज रिएक्शन होता है जब ए से बी और बी से फिर कोई चीज सी बनती है, विच इज अ थर्ड टाइप ऑफ न्यूक्लियस. Chain हाँ, reaction is not a type of decay. Chain reaction is a technology, in the sense of what we have done is there is a parallel decay, and the outcome of this is some two things plus also a neutron comes out. That neutron will go and hit another A. So one product of a parallel will again form a chain with the second one. Correct. तो वही डीके बार बार होगा, तो वो जाके ए को ठोकेगा, ए फिर स्प्लिट हो जाएगा. प्रोवोक कर रहे हैं हम उसको होने के लिए. और क्योंकि हर में से दो निकलते हैं एक्चुअली, जब यूरेनियम स्प्लिट करता है तो उसमें से दो न्यूट्रॉन निकलते हैं. एक न्यूट्रॉन पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो एक पहले यूरेनियम को फोड़ता है, उसके कोई प्रोडक्ट्स निकले बेरियम क्रिप्टॉन, उनको जाने दो, और दो न्यूट्रॉन निकले. अब वो दो न्यूट्रॉन जाके दो ए को ट्रिगर करेंगे. So एक तरह से many parallel which are happening in series. But still not called series. सीरीज का यहाँ पे मीनिंग है A to B to C, a third type of nucleus is formed. मतलब अभी वो लैम्डा नहीं देखेंगे, सिर्फ वो ऑर्डर में, और इससे सीरीज बोल रहे हैं. हाँ ठीक है, वैसे बोल सकते हो सीरीज, क्योंकि वो ऑर्डर में हो रहा है. बट द चेन रिएक्शन इज रियली दैट यू आर चेनिंग मल्टीपल पैरेलल रिएक्शंस टू ईच अदर. समझ गए. और वो बढ़ता जाता है अमाउंट, क्योंकि हर बार हर स्टेप में दो प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वो दो को ट्रिगर करेंगे तो उधर से दो, तो हर नेक्स्ट स्टेज पे चार हो जाएंगे, तो एन स्टेज पे 2 to the power n हो जाएंगे. सो दैट्स व्हाई इट जस्ट सॉर्ट ऑफ बिकम्स वायलेंट. तो पैरेलल डीके में एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ए जो है बी और सी में कंज्यूम हो रहा है, बी और सी में कन्वर्ट हो रहा है. तो आई कैन डायरेक्टली से, इस केस में भी ये ट्रू है कि d/dt of a plus b plus c is 0. Therefore, it is still true that dA/dt is अब इस तरीके से मैं लिख रहा हूं इसको. और इसको मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं, करेक्ट? Yes, sir. बी के बढ़ने का रेट वही है जो ए के λ1 वाले पाथवे से कम होने का रेट है, और सी के बढ़ने का वही रेट है जो ए के λ2 वाले पाथवे से कम होने का रेट है. और λ1 λ2 रिलेटिव प्रोबेबिलिटीज भी हैं एक तरीके से. अगर λ1 is twice λ2, then the probability of A converting to B is twice the probability of A converting to C. Then if you start with a kilogram of A, then you have 2/3 kilogram of B and 1/3 kilogram of C. So the net rate will be λ1 plus λ2. तो बस इसमें सिंप्लीफाई हो जाता है कि तुम इसको ऐसे प्रिटेंड कर सकते हो एज इफ एक सिंगुलर रिएक्शन हो रही है विद अ कंबाइंड डीके रेट ऑफ, तो यू कैन कॉल इट लैम्डा इक्विवेलेंट, जिसका आंसर तुम्हें पता है ऑलरेडी, इज दैट AT इज सिंपली A0 e की पावर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट T. तो यहाँ पे λ1 और प्लस λ2 A लिखा, it shouldn't be A0. नहीं, एट एनी टाइम होता है ना वो. हाँ राइट सर, सॉरी. और अब इसी बेसिस पे तुम डायरेक्टली फिर ये भी कह सकते हो कि फिर BT कितना है. BT इज सिंपली वॉट एवर A इज एट सम टाइम मल्टीप्लाइड टू λ1. सो दैट्स λ1 A0 e की पावर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट T. And what is CT? It is simply λ2 multiplied to whatever is the value, whatever amount of A is there at any time.
So that's lambda 2 and a naught e की पावर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट टी। सही लिखा है मैंने? नहीं, आई थिंक कुछ गलत लिखा है मैंने। तो सही लग रहा है सर। लैम्डा इक्विवेलेंट नहीं होगा ना बी और सी में? नहीं वो तो होगा ही। अच्छा मैंने गलत लिखा है ना, ये dB by dt है और ये dC by dt, राइट? Yes, sir. The rate Yes, at sir. which B is increasing, and so then you can integrate and find B and integrate and find C. ठीक है, क्लियर? सर तीन इक्वेशन एक बार समझा सकते हो? कौन सी? फर्स्ट तो समझ गया, सेकंड की दो जो लिखी ना। ये तो ठीक है ना? हाँ सर। और अभी तुमने यहाँ पे लिखा ना dB by dt को, ये वैल्यू तुमने दिया अभी जस्ट नाउ कि वो लैम्डा 1 a है, गॉट इट सर, गॉट इट। तो a तो यही है, तो dB by dt क्या है? लैम्डा 1 वही वैल्यू, और dC by dt क्या है? लैम्डा 2। अगर तुम यहाँ से इंटीग्रेट कर दोगे, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग, तुम्हारे पास bt आ जाएगा। bt कैसे आएगा? इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या बनेगा? लैम्डा 1 a नॉट नीचे आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटीग्रल में, और वो माइनस भी आएगा, लेकिन मैं फिर लिमिट्स चेंज कर रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ b की लिमिट्स। हो सकता है b और c पहले से कुछ हो, तो b की लिमिट्स में क्या डाल रहा हूँ टाइम में? हो सकता है ये bt जो है ये एक्चुअली होगा bt माइनस b नॉट, राइट? अगर पहले से ये b नॉट था तो। और इधर क्या टाइम की लिमिट्स डलेंगी? 0 से t, तो मैंने उनको उल्टा कर दिया, t से 0 और माइनस साइन हटा दिया, तो 0 वाली लिमिट से वो 1 हो गया और t वाली लिमिट से t हो गया, तो 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट टाइम। अब ठीक आ गया ना? इंक्रीजिंग आना चाहिए ना टाइम के साथ। ये हो गया b नॉट, अगर पहले से कुछ था, प्लस लैम्डा 1 a नॉट, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2t। सो यू कैन सी ये जो ग्राफ है ये ऐसे बढ़ेगा, b नॉट तो पहले होगा, और फिर ये फाइनली कितना होने वाला है? देखो, इसको टाइम इन्फिनिटी डाल दोगे तो ये लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 a नॉट हो जाएगा, विच इज करेक्ट। a नॉट का लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्रोपोर्शन b बनेगा। अग्रीड? Yes, sir. So now you will have an asymptotic approach to this value. Starting with b naught, you will be left with b naught plus lambda 1 by lambda 1 plus lambda 2 proportion of a will also have converted to b. जैसे मैंने बोला कि lambda 1 अगर 2 है और lambda 2 1 है, तो 2/3 a naught जो है b बन गया होगा। And with the same logic, c भी तुम निकाल सकते हो। Similarly, ct is whatever c naught plus lambda 2 by lambda 1 plus lambda 2 a naught 1 minus e की पावर minus lambda 1 plus lambda 2 t, which is starts at c naught, asymptotic approach to c naught plus lambda 2 by lambda 1 plus lambda 2 times a naught, बाकी प्रोपोर्शन जो है उसका वो c बन गया। ठीक है, सबको समझ गए? हाँ क्षितिज, वही किया एक तरीके से, प्रोबेबिलिटी यूज किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ऑफ b फ्रॉम a इज लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग c फ्रॉम a इज लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो एक सेंस में वही है, फाइनल अमाउंट तो हम कह ही सकते हैं। इवन विदाउट सॉल्विंग यू कुड हैव सेड कि अगर हमारे पास इनके a नॉट b नॉट c नॉट थे
तो फाइनली इसका 0 होगा, इसका बी नॉट प्लस लैम्डा 1 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ए नॉट होगा, और इसका सी नॉट प्लस लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ए नॉट होगा। वो प्रोपोर्शन में स्प्लिट हो जाएगा। Correct. If you add up the final amounts, you will get a naught plus b naught plus c naught again. यहाँ से b naught आएगा और ये आएगा, पीछे से c naught आएगा और ये आएगा, और दोनों का ये ऐड होके a naught बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी in parallel decay also. Not just then, but also at any time, क्योंकि पार्टिकल्स तो कंजर्व नहीं है नंबर में। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये चीज पूरा? Yes, sir. All right. तो अब जो है, this is basically the end of the story. As far as our तो ये पूरा मेंस ओनली टॉपिक है ना? नहीं, ये एडवांस का टॉपिक है। ये भी हमारा वो जो मॉडर्न फिजिक्स का न्यूक्लियर वाला पार्ट था, उसी का एंड था ये। ठीक है, अब हम करेंगे मेंस टॉपिक। अब हमारा एडवांस का खत्म हुआ है बेसिकली। ओके सर। सर हमने यूनिट डायमेंशन या मेजरमेंट में शायद से वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज कवर नहीं किया है, ठीक है, तो आप वो कवर कर सकते हो। ठीक है, वो भी कर लेंगे। सर हमें बोला कि बिना नहीं कर सकते हो कवर, क्या चीज? वो बिना शो किए नहीं कर सकते कवर, इसके लिए नहीं किया था, ये हम लोग का प्रैक्टिकल्स भी नहीं हुआ ना। हाँ, वो बात भी है। वैसे कर तो सकते हैं उसके बिना भी, सर स्कूल में किया था हमने। कर सकते हैं उसके बिना भी कर सकते हैं, ड्राइंग बना के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर कभी प्रैक्टिकल तुम्हारा नहीं भी हो पाएगा तो भी हम कर लेंगे, कोई ऐसा पंगा नहीं। तो एनीवे, अब हम जो है, हमारा एडवांस का कहानी खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ से जो है मेंस ओनली टॉपिक्स करेंगे। जिसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, सम शॉर्ट सम लॉन्ग। लेट मी स्टार्ट विद अ शॉर्ट टॉपिक, EM waves। क्योंकि अभी हम इससे जस्ट पहले ही लाइट एज वेव, लाइट एज पार्टिकल काफी कर चुके हैं, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड दिस इज नाउ गोइंग इवन डीपर इनटू लाइट एज वेव। हम लोग का मैग्नेटिज्म भी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो रिक्वायर्ड है क्या इसके लिए? वैसे तो है रिक्वायर्ड, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेंस का ही टॉपिक है, तो इसमें ज्यादा टेक्निकली रिक्वायर्ड नहीं है। तो जितना रिक्वायर्ड है वो मैं बता दूंगा इंट्यूटिवली। ओके। तो क्या होता है कि अगर तुम बेसिकली, हमने पहले डिस्कशन किया था कि लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है, ये सारा कहानी हुआ था, राइट? तो लाइट वेव है, YDSC से प्रूव हुआ था कि लाइट वेव है, लेकिन वो किस प्रकार का वेव है ये उससे साबित नहीं हो पाया था। प्रकार से मेरा मतलब है कि जब तुम बोलते हो कि कोई चीज वेव है, तो ठीक है, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ वेव बोलने से ही क्लियर हो जाता है कि अगर वेव है तो क्या क्या होता होगा। सुपरपोजिशन होता होगा, रिफ्लेक्शन होता होगा, ट्रांसमिशन होता होगा,
कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता होगा। तो मतलब वेव बोलने से, केवल ये कहने से कि वेव है, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली उसके लिए वैलिड हो जाती है। लेकिन फिर ये भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर वो वेव है तो किस टाइप का वेव है, मतलब कि कौन सी चीज है जो वेव हो रही है, विच इज द प्रॉपर्टी दैट इज changing, which is when you are looking inside of the wave and seeing what kind of a wave it is. So if you say it's a wave, it shows some features which are common to all waves, whether it's a wave of sound, whether it's a wave of light, whether it's a wave of water, whether it's a wave on a string, whether it's a Mexican wave. There are certain things that are true across waves. For that purpose, you don't have to talk about what kind of a wave it is. If you say wave, then it's automatically true that there is superposition, that there is reflection, that there is transmission, that there is constructive interference, destructive interference. All of that logic is automatically true. So YDSC was basically simply proving that it's a wave, not what kind of a wave, but simply that it is a wave. And that was done by showing that it superposes, right? तो YDSC एक्सपेरिमेंट हुआ, ये प्रूव हो गया कि लाइट वेव है। उसके 15-20 साल बाद ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे साउंड एक मैकेनिकल वेव है, प्रेशर वेरिएशन है, वैसे लाइट में किस चीज का वेरिएशन है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का वेरिएशन है, राइट? तो तुम लोगों ने मैग्नेटिज्म में अभी क्या पढ़ा है? कितना सर पढ़ 2 ही लिया? लेक्चर हुए हैं। 2 लेक्चर हुए हैं। तो तुमने ये पढ़ लिया है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हाँ सर, क्या तुमने लेफ्ट हैंड रूल भी कर दिया। ठीक है, तुमने इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड सीख लिया है? सर सीखा तो नहीं, बट पता है राइट हैंड थंब रूल से होगा ना वो। हाँ, बस इतना जानना काफी रहेगा यहाँ पर। बाकी मैं तुम्हें सिर्फ इंट्यूशन से समझा दूंगा, फिर तुम आगे उसको सीख लोगे मैथमेटिकली भी। अगर तुम्हारे पास एक वायर है जो मान लो करंट कैरी कर रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या तुम पहले मेरे को बस ये बता सकते हो कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में कैसी दिखती होगी? क्लॉकवाइज होगी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। रिंग्स होंगे इसके अराउंड। हाँ सर। एक प्लेन में भी अगर देखोगे तो रिंग्स बड़े होते जाएंगे और वीकर होते जाएंगे, यानी फेडेड होते जाएंगे। ये बात समझ रहे हो? हाँ The field degrades with distance from wire. And also, given that you can put your thumb on the current like this, the way your hand circulates is the way that field will also be circulating, in the sense of the field is not circulating, it's a static field, but that if you go to some place, that direction of the field there is given by this circulation. Vector है हर जगह पे b b b b b करके vector लगा हुआ है, लेकिन उसका जो sense of direction है वो is given by this rule. ऐसा दिखता है magnetic field, right? And of course, what is in this plane is also in the plane above it and the plane below it. Since the wire is infinitely long, every point on the wire is the midpoint of the wire. So the story is simply a copy pasting of this. इस प्लेन में भी इनफाइनाइट रिंग्स हैं जो बड़े होते होते और वीकर होते जाते हैं। क्या तुम इस फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर चुके हो? एक फॉर्मूला था। बेसिकली बस इतनी सी बात है कि जो बी का स्ट्रेंथ है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस के रेडियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वो भी हमें जरूरत नहीं यहाँ पर, उसको भी जाने दे सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि दैट बिकम्स वीकर विद डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ। अब पहली चीज जो है टू लर्न अबाउट हियर is that ki let me ask you this question, and all of this is just intuition and common sense. If you take I'll be using this idea to first of all illustrate what is an electromagnetic wave, and then we'll talk about the rest of the story later. अगर मान लो कभी कभी क्या करना होता है, अब क्योंकि प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि प्रॉपरली 3D स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वायर ऐसे है, फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट इट. वन इज दैट यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द साइड एंड आई हैव टू ड्रॉ अ पर्सपेक्टिव ड्राइंग इन द सेंस ऑफ while the paper is 2-dimensional, I am trying to represent a 3-dimensional situation. You are supposed to interpret कि वो वाला चीज इस वाला चीज से पीछे है, दूर है. अब वो ड्राइंग में मैंने उसको ऐसा कर दिया तो उससे तुम्हें अंदाजा लग रहा है कि वो दूर है, ये हमारे पास में. बट आई कैन ऑल्सो लुक एट इट फ्रॉम अबव. जब मैं ऊपर से देखूंगा तो जो करंट मेरी तरफ आ रही होती है उसको हम स्कीमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं.
अगर मैं इसको नीचे से देख रहा होता तो करंट मेरे से दूर जा रहा होता, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता। यही सिंबोलिज्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यूज होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शनल है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को तुम इधर से देख रहे हो, मान लो तुम यहाँ खड़े होके इस वेक्टर को, क्योंकि इस जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, मान लो यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, कई सारे वेक्टर हैं गोइंग ऑल अराउंड, और दूर जाते जाते वो छोटे वेक्टर्स हो जाते हैं, लेकिन वो सर्कुलेट ही कर रहे होते हैं उसके अराउंड। that getting the vectors becoming smaller with distance is what I'm showing by the more fadedness of the line, right? So when you look at the B vector from behind, then you can also show it like this, and when you're looking at it from front, then you can show it like this. But here I simply mean that it's a current carrying wire which is bringing current up to me. ऐसे वायर है, करंट ला रहा है मेरी तरफ। तो इस तरह के ड्राइंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अब तो सिंपली सर्कल्स हैं इसी प्लेन में। So I will end up drawing them like this. And of course, you must understand the circles I am making are discrete, but there are circles everywhere. The magnetic field is not discretely located in space. It's everywhere there is a magnetic field. There is a circle in between. Any two circles, there are infinite circles, right? It just smoothly fades. और क्योंकि राइट हैंड थंब रूल हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी इजी है देखना, करंट मेरी तरफ आ रही है तो ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता है मेरे को। ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर ये उससे वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, फिर वो उससे वीकर एंड सो ऑन। अब मान लो मैं दो वायर्स ले लूं पैरेलल टू ईच अदर एंड टेकिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, यानी इसके बाजू में एक और करंट कैरिंग वायर लगा दिया जो ऊपर करंट लेके जा रही है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, सेम सेंस में वो भी होगा। The first question that I am going to ask you is, in the region between the two, is the magnetic field going to be strong or weak? Weak, right? Because एक के कारण वैसे तो दोनों का सेंस सेम है, as seen from my side, दोनों का सर्कुलेशन का सेंस सेम है काउंटर क्लॉकवाइज, but since this point is to the right of this wire but to the left of that wire, their circulations are basically going to come opposite to each other. इसका मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जनरली डाउनवर्ड्स पॉइंटिंग है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में जनरली अपवर्ड पॉइंटिंग है, तो ये रीजन में जो है जनरली वीकर फील्ड हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों का फील्ड का रिजल्टेंट को बनाना चाहता हूं, देखो तुम एनालॉजी इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हो। जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का फील्ड बनाते हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, राइट, डाइपोल या एनीवे टू चार्जेस, इफ आई वांट टू मेक द फील्ड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, then it's simply two radial fields. This field is like this, going away. Sorry. And this field is like this, going towards. They are both perfectly radial, nice fields. But if I want to show the net field at any place, then I have to do a vector sum. तो जब मैं जगह जगह वेक्टर सम करता हूं, कि जैसे इस जगह पे जाके मैंने वेक्टर सम किया, तो इस जगह पे इसका फील्ड ऐसे पॉइंटिंग है, इसका फील्ड इधर, इसका फील्ड उधर में ऐसे पॉइंटिंग है, तो इनका रिजल्टेंट ऐसा आ गया। इस जगह पे इसका फील्ड ऐसे पॉइंटिंग है और बड़ा है काफी क्योंकि इसके पास में है, और उसका फील्ड उसकी तरफ पॉइंटिंग है लेकिन छोटा है क्योंकि उससे दूर में है। तो दो चार्जेस ऐसा होगा ना, प्लस और माइनस चार्ज रखना है। हाँ वही मैं बना रहा हूँ, बट मैं आइडिया बता रहा हूँ कि लॉजिक क्या है जो हम कंबाइंड फील्ड बनाते हैं। तो जब मैं हर जगह पे दोनों फील्ड्स का वेक्टर सम कर करके पिंक एरो से उनको रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो उनको जब कनेक्ट करके बनाएंगे तो ये वाला ड्राइंग बनता है जो तुमने बहुत बार देखा है। सो व्हेन यू सी दिस ड्राइंग, दीज पिंक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट दी नेट फील्ड। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? They don't represent the individual fields, they represent the net field, the vector sum of the two individual fields. Agreed? You can do a similar thing with the magnetic fields. अगर मैं यहाँ पे अब नेट फील्ड बनाना चाहता हूँ इस सिचुएशन का, तो तुम लोग देख सकते हो कि क्या होगा जब दोनों तुम इनको बाजू बाजू में रख दोगे, तो बीच में तो फेड आउट कर जाएगा क्योंकि ऑपोजिशन में है, लेकिन जैसे इधर वाले रीजन में स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इसका भी ऐसे नीचे है और उसके कारण उसका भी तो गोले होंगे, गोले तो इनफाइनाइटली बड़े हैं, इसके अपने गोले भी तो यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है, वीक हो गए, एंड दे मस्ट बी पॉइंटिंग इन दिस सेंस। So over here they will add up, over here they will add up. In this region when you come,
I'm going to simply draw it, and you can tell me if you find it intuitive or not, right? Because all of this is based on intuition. At any time, if I want to make a net resultant, it kind of looks like this. Does it seem to make sense to all of you? Yes, sir. Yes. Right? Jaise, and it's no coincidence. It's not a coincidence that it also looks like how the waves from 2 point sources would look, the combined wavefront, because that is also the same kind of thing. It's a result of superposition. Over here, I'm superposing fields. Over there, you superpose waves. So if 2 stones were dropped simultaneously in the same place, then their combined wavefront would look like this. Do you agree? ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सर बीच हाँ. में एक पॉइंट भी होगा जहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, डिस्ट्रॉय एक पॉइंट, हाँ, अगर आइडेंटिकल करंट्स हैं और तुम उनसे बीचों बीच में बैठ जाओगे तो जीरो फील्ड भी होगा एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पे. हाँ सर. ठीक है. अब मेरा पॉइंट ये है कि अब तुम ये सोचो कि मान लो मैंने इनके बीच में भी एक और करंट कैरिंग वायर घुसा दिया आइडेंटिकल, तो जब उसके गोले यहाँ पे आएंगे तो वो ये जो गड्ढा सा बन गया यहाँ पे उसको थोड़ा फिल कर देंगे, तो क्या रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा? हाँ सर. फिर मैंने इन दोनों के बीच में भी वायर घुसा दिया और इन दोनों के बीच में भी, तो यहाँ जो गड्ढा है ये भी फिल हो गया और यहाँ जो गड्ढा है ये भी फिल हो गया. तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो जैसे इंटीग्रेशन टाइम सीखते थे कि वो छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते गए तो गड्ढे फिल होते गए. हाँ. तो अब मैं क्या करता जाऊंगा कि बस मैं यहाँ पे वायर आफ्टर वायर प्लेस करता जाऊंगा और ये जो है गड्ढे मोर न्यूमरस और मोर छोटे होते जाएंगे. तो तुम लोग मुझे बताओ कि इन द लिमिट की इनफाइनाइटली मैनी वायर्स मैं लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये लाइन, ये चीज कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन. करेक्ट. और जब मैं इनफाइनाइटली मैनी वायर्स रख दूंगा, व्हेन आई पुट इनफाइनाइटली मैनी वायर्स, तो ये चीज कैसा दिखेगा फिर? अब इसको देखो प्रॉपरली ऐसे, मतलब ये तो टॉप से देख रहे हो तुम, उधर से देखो कैसा दिखेगा? प्लेन, करंट कैरिंग प्लेन जैसा दिखेगा, पूरा शीट of current is coming up, right? So basically what you have shown, and this is something you will study in your magnetism chapter, is that if there is a sheet of current, wire तो line होता है, but if there is a sheet or a plane carrying current, है ना, पूरा plane में ही current ऐसा जैसे ग्लेशियर चलता है वैसा टाइप करंट चल रहा है, the whole thing is a current. तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अराउंड ऐसी दिखनी चाहिए. सिलेंडर मूविंग आउट ऐसा होगा ना? नहीं, सिलेंडर मूविंग आउट नहीं, प्लेन चल रहा है ऊपर की तरफ, करंट का प्लेन है, इनफाइनाइट करंट है ऑब्वियसली, ये तो बाउंड्री नहीं है इसकी कोई, नीचे करंट नीचे से आ रहा है इन्फिनिटी से और ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी तक. तो इसके अराउंड जो लाइन मैंने बनाया रेड में वो तुम लोग समझ रहे हो कैसा दिख रहा है? वो इसका नेट फील्ड और ये भी डिस्टेंस के साथ फेड होगा. सर टेक्निकली वो लूप होगा ही ना, क्योंकि इंफिनिटी पे होगा. नहीं, लूप ऐसे है ना. हाँ बट वो वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है. हाँ ठीक है, इनफाइनाइट जाके कहीं से, तो ऐसे तो ये भी कैसे हो सकता है फिर? हाँ. करंट कहीं से आता है कहीं से जाता है, बट ये तो आइडियलाइजेशन है. तुम बोलो कि इन्फिनिटी से करंट आ रही है, जो वायरिंग है इसकी, जो बैटरी है वो कहीं इन्फिनिटी से होगी. अल्टीमेटली जब इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर बोलते हैं तो फिजिक्स में उसका मतलब ट्रूली इन्फाइनाइट नहीं होता है. इट्स लाइक मे बी देयर इज अ सर्किट इन फ्रंट ऑफ यू, अ स्मॉल सर्किट जिसमें एक 10 सेंटीमीटर लंबा वायर है, बट अगर तुम माइक्रॉन्स के लेवल पे उसके मिडिल पोर्शन में आके इधर उधर देखोगे तो प्रीटी मच इन्फाइनाइटली लॉन्ग लगेगा तुम्हें स्ट्रेट, तो उसकी लोकल फील्ड ऐसी दिखती होगी. ठीक है, जब तुम आ जाओगे कॉर्नर्स पे और वहाँ पे वो बेंड होता होगा तो कॉम्बिनेशन फील्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फील्ड हो जाएगा वो, कि उसके अपने रिंग्स ऐसे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, इधर के रिंग्स ऐसे होंगे और बेंड पे ऐसे होंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी. But if you are away from all the bends and you are somewhere near the middle of the wire and you are a micrometer long, then you can pretty much say it's like perfect rings around the wire, right? Yes. But my point here is, do you all understand this? बट इसका वो वाले रिंग से क्या कनेक्शन है जो ऊपर बनाया था फर्स्ट डायग्राम, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए? उन्हीं को तो रख के मैंने, एक वायर ऊपर से देख रहे हो, एक वायर है उसके अपने रिंग्स हैं, दूसरा बट वायर ये तो कम्प्लीटली अलग है ना उससे जो अभी भी डायग्राम बनाया है. अलग क्यों है उससे? वही रिंग्स कंबाइन हो के तो बने ये, उन्हीं रिंग्स के सुपर इंडिविजुअल वायर्स के रिंग्स के सुपरपोजिशन, हॉइजेंस प्रिंसिपल टाइप ही तो हो गया है वेवफ्रंट. आपने इनफाइनाइट वायर्स भी रखे हैं ऐसा? हाँ, इनफाइनाइट वायर्स भी हैं ऐसे, तभी तो प्लेन बनेगा वो. अगर इनफाइनाइट वायर्स नहीं होंगे तो गैप्स हो जाएंगे ना उनमें. हाँ समझिए. क्योंकि वो खुद लाइंस है. लेकिन अभी ये लिमिटेड है ऐसे ना, ऐसे लिमिटेड है ये, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे एक टर्न दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड की. डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस. अगर मैं इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट वायर्स कर दूं
वायर खुद तो लेंथ में इनफाइनाइट है ही, और मैं ऐसे भी इनफाइनाइट वायर्स कर दूं, तो ये चीज तुम देख नहीं पाओगे ना फिर। हाँ, दो पैरेलल प्लेन्स मूविंग ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। तो बेसिकली तुम्हारे पास एक ट्रूली इनफाइनाइट प्लेन हो जाएगा, कैरिंग करंट इन सम डायरेक्शन, जो इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, और इधर भी इनफाइनाइट। अब अगर वो ट्रूली इनफाइनाइट प्लेन है तो उसने यूनिवर्स को दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर ये तुम्हारा यूनिवर्स है और उसमें तुम ट्रूली इनफाइनाइट प्लेन डाल दो जो हर एक्सटेंट में इनफाइनाइट हो, तो अब ये रीजन इस रीजन से डिस्कनेक्ट हो गया ना, यस, और तुम एजेस पे जा नहीं सकते हो, तो तुम्हें ये टर्न कभी दिखेगा नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से कैसा मैग्नेटिक फील्ड हो गया? तुम्हारे हिसाब से इस हाफ ऑफ द यूनिवर्स में एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और उधर वाले में ऐसे है। तुम लोग समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ पा रहे हो तुम लोग ठीक से? सर रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है और पॉइंटिंग वो डायरेक्शन में ना, रेडियली आउटवर्ड नहीं मूव कर रहा है, अब तो प्लेन तो अभी पैरेलली आउटवर्ड मूव कर रहा है बट शिफ्ट Correct. पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन। करेक्ट। इस हाफ में उधर पॉइंटिंग है, उस हाफ में उधर पॉइंटिंग है। बेसिकली तुमने इनफाइनाइट प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है ना, जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है। यस सर। हाँ सर, वो प्लेन का फील्ड जो होता है वो ऐसे होता है, यूनिफॉर्म, हाँ सर, है ना, और वो डिस्टेंस के साथ डिग्रेड करता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है ना, उसमें आर का फैक्टर ही नहीं होता है, यानी वो ऑल द वे टू इन्फिनिटी भी वही स्ट्रेंथ का होता है। सर वो लॉजिकली गलत नहीं है क्योंकि कभी तो डिग्रेड करना ही चाहिए ना नहीं डिस्टेंस नहीं, प्लेन भी इनफाइनाइट है ना, में। राइट, प्लेन इनफाइनाइट है। एक सेंस में तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर तुम मान लो, तुम इमेजिन करो इनफाइनाइट प्लेन कैसा दिखता होगा स्पेस में। इनफाइनाइट प्लेन जो है, मतलब हम उसके कितने पास से दूर हो वी कैन नॉट परसीव इट। you can't judge. There is no way to say how far or how near you are to the infinite plane. So nature also can't tell in a sense. ठीक है? तो इनफाइनाइट प्लेन अगर मान लो यूनिवर्स है ब्लैक और इनफाइनाइट प्लेन है व्हाइट, और तुम इनफाइनाइट प्लेन की तरफ देखोगे की डायरेक्शन में, तुम तो छोटे से हो, तुम इधर बैठे हो कहीं स्पेस में अपने जेट पैक से फ्लोट कर रहे हो। फ्लोट भी क्या कर रहे हो, जेट पैक की भी जरूरत नहीं, ग्रेविटी तो है नहीं। तो जब तुम इनफाइनाइट प्लेन की तरफ देखते हो तो तुम्हें अपने पूरे फील्ड ऑफ व्यू में व्हाइट ही दिखता है, क्योंकि तुम्हारा इधर तक भी व्हाइट है इन्फिनिटी, इधर भी व्हाइट है, इधर भी व्हाइट है, इधर भी व्हाइट है। तो तुम दूर दूर जाते हो उससे, तो मोर एंड मोर ऑफ द प्लेन तुम्हारे फील्ड ऑफ व्यू में आ जाता है, लेकिन वो तो इन्फिनिटी तक है ना व्हाइट। तो देयरफॉर your entire field of view is white. If you look in this direction, normal to the plane, then your entire field of view is white. Only when you turn your head to that side do you see in the horizon a partition between white and black. Or you look up, or you look that way, or you look that way. But otherwise, if you look this way, then it's all white. If you turn around completely and look this way, then it's all black, right? That's the जो kind of एंगुलर परसेप्शन होगा रेडियल परसेप्शन नहीं होगा। planar situation दिखेगा ना तुम्हें। बट सर इसमें भी डिग्रेड कर रहा है क्या फिर? नहीं, इसमें भी डिग्रेड नहीं करेगा डिस्टेंस के साथ। अब ये चीज यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, तुम लोग सीख लोगे, क्योंकि दिस इज अ मैथमेटिकल थिंग दैट हैज टू बी प्रूवन। बट आई गेस तुम स्पिरिट तो समझ ही सकते हो। अगर इनफाइनाइट प्लेन का इलेक्ट्रिकल फील्ड डिग्रेड नहीं करता है डिस्टेंस हाँ के साथ, तो इनफाइनाइट प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्टेंस के साथ डिग्रेड नहीं करता होगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रेडियल फील्ड। रेडियल माने पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सोर्स, while the magnetic field is not a radial field, it's a tangential field. It points tangentially to the source, whether it's a singular wire or a plane, because it's a result of a circulation around the source instead of sort of sprouting from the source, like the electrical field sprouts. The electrical field from a charge sort of sprouts from the charge. The magnetic field of a current encapsulates the current, right? तो ये तो फंडामेंटल डिफरेंस है उन दोनों में। इस कारण से इनफाइनाइट प्लेन का जो फील्ड है वो ऐसे और ऐसे है, बट कोई डिफरेंस नहीं है इससे, इन द सेंस ऑफ इफ यू जस्ट टेक दीज वेक्टर्स एंड टर्न दीज वंस इन दैट डायरेक्शन एंड टर्न दीज वंस इनटू दिस डायरेक्शन, देन यू हैव द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग रीजनिंग एक होती है सिमेट्री के बेसिस पे, जो तुम सोच सकते हो। यू कैन प्रूव, I mean prove in the sense of to the extent that anything can be proven in physics, that the electrical field, अगर मान लो तुमने कुछ नहीं पढ़ा होता ENM, तुम्हें चार्ज वार्ज कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है, यू आर जस्ट बॉर्न, बट यू हैव योर मेंटल फैकल्टीज एज यू हैव देम राइट नाउ, राइट? तुम्हारा उतना ही इवॉल्व दिमाग है जितना अभी है, बच्चे ऐसे नहीं हो, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई पीछे का कोई भी ट्रिविया जो तुमने बचपन में भी सुना होगा, चार्ज होता है व्हाटएवर, कुछ भी नहीं तुम्हें पता है, नो फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड आर नोन टू यू।
even then, on the basis of simply symmetry, you can prove that the electrical field of an infinite plane can only look like this. It cannot look like this. Think about Yes, it. sir. नहीं आर्या, तो वही मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था. Magnetic field does not break spatial symmetry. It does not break symmetry because that symmetry is already broken by the direction of current. सर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इट विल गेट स्टॉप, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इट विल जस्ट इग्नोर इट और उसके पीछे भी चलता रहेगा. नहीं, इसका इससे कैसे कनेक्शन है? वो तो एक अलग इफेक्ट है कि अभी वो डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं कि फील्ड जो है किसी बॉडी पे फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा है. नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ. जैसे कि ये हाँ. अपना प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, हाँ. वहाँ पे मैंने एक बिग बड़ा सा स्टोन रख दिया सच दैट सारा लाइंस ब्लॉक हो गया, हाँ. तो फिर उसके पीछे कोई लाइंस जाएगा नहीं. नहीं, पहले तो एक चीज है कि क्या रखने वाले हो तुम. देखो, शील्डिंग तुमने पढ़ा है, तुम मेटल प्लेट रख सकते हो जो कि खुद इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए. मतलब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट से ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा जैसे. ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा. तुम्हें पता है फील्ड होता है, फील्ड एब्स्ट्रैक्शन है, वो रुकता थोड़ी है किसी चीज से. हाँ सॉरी. द ओनली वे, देखो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, कैपेसिटर पढ़ लिया, तो द ओनली वे यू नो दैट द ओनली वे यू कैन हैव अ रीजन फ्री ऑफ फील्ड इज टू क्रिएट अ रिवर्स फील्ड देयर. मेटल के अंदर कैसे जीरो फील्ड हो जाती है? क्योंकि मेटल के सरफेस पे चार्जेस एक कॉन्फ़िगरेशन पकड़ते हैं जिससे वो एक इनवर्स फील्ड प्रोड्यूस करते हैं मेटल की बॉडी के अंदर, जो एक्सटर्नल फील्ड को वाइप आउट कर देता है. Yes, sir. Other than that, there is no वो blocking of a field is not a concept. It's a concept in science fiction where there is like a field shield and whatever. But those are not scientific ideas. They are basically fictional ideas. Electrical field को block नहीं कर सकते हैं. Electrical field को superpose करके zero कर सकते हैं by producing a reverse equal field. ठीक है? अच्छा, बट आई होप सबको इसका ज्योमेट्री समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो एसेंशियल है इस प्रॉब्लम, इस डिस्कशन को समझने के लिए, कि ये जो है बेसिकली ऑल ऑफ स्पेस इज फिल्ड with arrows which are the same size everywhere and they don't decrease with distance and they're all parallel. So this is called a uniform field, right? ऊपर नीचे ऐसे सब तरफ बिल्कुल एरो 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 लगे हुए सेम साइज के. ठीक है, that's the magnetic field, right? अब हम करेंगे असली डिस्कशन कि EM वेव क्या चीज होती है. तो think about it in this manner. मान लो थोड़ा विजुअलाइजेशन की ईज के लिए कि तुम इस स्पेस में हो, कहीं पे फ्लोट कर रहे हो, तो तुम देख सकते हो इनफाइनाइट प्लेन है, और जो ये एरोज हैं, मतलब जब ये फील्ड होता है तो ये एरो भी तुम्हें दिखते हैं. वैसे तो फील्ड इनविजिबल थिंग है, लेकिन मान लो तुम देख सकते हो कि एरोज कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, अरे वो मैं बाद में बोलता हूँ, दैट विल टेक अस अवे फ्रॉम द मेन पॉइंट. व्हाई द सिमेट्री वाला चीज हम बाद में डिस्कस कर लेंगे लेक्चर के. इट्स मोर ऑफ अ auxiliary topic. It's an interesting idea. It's a very fundamental idea, but it's not really going to take us away from the main thing. And time चला जाएगा थोड़ा सा. तो point ये है कि you can basically see, मान लो hypothetically you have the eyes to see the field. तो मान लो ये जो फील्ड के एरोज हैं तुम्हें दिखाई दे रहे हैं. मान लो यही कलर की फील्ड दिखती है. ठीक है, रेड कलर की फील्ड है, राइट? अगर इस प्लेन पे करंट नहीं होता, करंट जीरो है, तो फील्ड नहीं है. अग्रीड? तो पूरा यूनिवर्स में अंधेरा छाया होता दोनों तरफ. वैसे दूसरी तरफ से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम इस साइड हो, लेकिन ऑब्वियसली जो इधर है वो इधर है. सेम स्टोरी है एक्सेप्ट विद अ डिफरेंट डायरेक्शन, राइट? तो और अगर प्लेन पे करंट है तो सारे वेक्टर्स ऑन है. मैं ऑन बोल रहा हूँ उनको, मैं उनको एलईडी की तरह इमेजिन कर रहा हूँ, राइट? जैसे शादी का एलईडी होता है, वैसे मैं एरोज को इमेजिन कर रहा हूँ कि वो स्पेस में लगे हुए, बट वो ऑफ या ऑन हो सकते हैं. तो जब वो ऑन है तो मतलब वहाँ फील्ड है. तो पूरा लिट अप है एकदम, बिल्कुल बढ़िया सा पार्टी जैसा हो रखा है यूनिवर्स में. माय क्वेश्चन, एंड जनरली व्हाट यू स्टडी, and this is how it is conceptually different in the sense of when you are studying electrostatics or when you are studying what you are studying right now, which is magnetostatics, you are basically discussing electric and magnetic fields that are not changing with time. तो जब तुमने ये भी पढ़ा था the field of an charge carrying plane, तो तुमने इसको स्टैटिक फील्ड पढ़ा था. स्टैटिक फील्ड मतलब तुम ये सिचुएशन नहीं कंसिडर कर रहे थे कि अचानक से अगर मैं इस चार्ज की वैल्यू को हाफ कर दूं तो ये फील्ड पे जो इफेक्ट होगा वो कैसे होगा. तुम बस ये पढ़ रहे थे कि अगर इस प्लेन पे इतना चार्ज है तो किसी जगह पे वेक्टर का साइज क्या होगा.
यहाँ पर भी तुम जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे कि अगर इस प्लेन पे इतना करंट है तो किसी जगह पे वेक्टर का साइज क्या होगा। तुम ये नहीं पढ़ोगे टेक्निकली कि अगर एक करंट को हम चेंज कर रहे हैं बार बार तो ये वेक्टर पे जो इफेक्ट हो रही है वो कैसे हो रही है। डू यू फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. राइट। यस सर। लेकिन अब फंडामेंटली ईएम वेव्स उसी से अराइज होते हैं, वो डायनामिक से अराइज होते हैं, वो स्टैटिक से नहीं अराइज होते हैं। तो इसके लिए हमें डायनामिक समझने की जरूरत है। माय क्वेश्चन इज, मान लो कि पहले पूरे प्लेन पे करंट ऑफ है, ठीक है, कोई करंट नहीं चल रहा है, तुम्हारे पास एक बटन है, मान लो छोटा सा एक लीवर है जिससे तुम करंट को ऑफ या ऑन कर सकते हो, बाइनरी स्विच है, ठीक है। तो करंट अभी ऑफ हो रखी है, तो पूरा यूनिवर्स में अंधेरा छाया हुआ है, सारे वेक्टर जो हैं, सारे रेड लाइट जो है वो ऑफ हो रखे हैं, तो तुम यहाँ अंधेरे में बैठे हुए हो। अगर तुम इसको अब ऑन करते हो, तुम्हें ये भी पता है कि जब ये ऑन हो जाएगा और करंट चल रहा होगा और जब फील्ड पूरा एस्टैब्लिश हो चुका होगा यूनिवर्स में, तो उसकी फाइनल स्टेट भी तुम्हें पता है। ऑल द वे फ्रॉम द प्लेन टू इंफिनिटी इज लिट अप विद आइडेंटिकल एरोस, सो यू नो व्हाट इट शुड लुक लाइक लेटर, यू नो व्हाट इट लुक्स लाइक राइट नाउ, व्हिच इज पूरे में अंधेरा छाया हुआ है। द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ डज इट गेट फ्रॉम दैट टू दैट, how when you switch on the current, how does the field establish itself? I will give you two options and you can tell me which of the two options you think is the correct way the field actually comes into being. Option one is it's all dark, there is no field, you switch on the current, immediately all at once in the entire universe all the arrows come to life. तुमने ऑन किया, खट से पूरा फील्ड ऑन हो गया। पूरा फील्ड मतलब यहां से लेकर इंफिनिटी तक, ऊपर के इंफिनिटी तक, नीचे के इंफिनिटी तक, पूरे यूनिवर्स में एक साथ लाइट ऑन हो गया। या ऑप्शन टू, तुमने ऑन किया करंट को, सबसे पहले जो प्लेन्स करंट के प्लेन के बाजू में है उनमें जो एरोज हैं वो ऑन हुए, फिर उनके बाद वाले प्लेन में एरोज ऑन हुए, और इस तरीके से जैसे दिवाली का लाइट्स ऑन होता है वैसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स ऑन होते हुए जाएंगे। सर फर्स्ट ऑप्शन। Second option. सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज इट लीड्स सर क्योंकि फिजिकली कोई मोशन नहीं है ना, ये सब पूरा क्वांटम फिजिक्स के फोर्थ डायमेंशन से हो जाएगा इंस्टेंटली ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारा यूनिवर्स में तुम्हारे इस जगह पे लोकली एक बटन दबाने से यहाँ से 10 लाइट ईयर दूर बैठी हुई जगह का वेक्टर भी उसी इंस्टेंट पे ऑन हो गया, तो यू विल एंड अप वायलेटिंग व्हाट इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट पोस्टुलेट। बेसिकली हमारे यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन भी स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर नहीं जा सकता है। वी डोंट लिव इन अ यूनिवर्स वेयर देयर इज इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, नीदर इंफॉर्मेशन नॉर मैटर। मैटर तो जा ही नहीं सकता लाइट से फास्टर, यू कांट सेंड अ थिंग faster than the speed of light, you can't even send information faster than the speed of light, because light, the speed of light is the upper limit on how fast information। अगर मान लो मेरा ये बटन यहां ऑन करने से मार्स पे बैठा हुआ जो वेक्टर है वो उसी समय जैसे मैंने ऑन किया करंट और वो वेक्टर ऑन हो गया, तो हम एक कोड बना लेंगे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ ऑफ, मॉर्स कोड, कोई भी कोड बना लो, और वहां पे बैठे हुए आदमी को उसी समय पता चल जाता है जिस समय मैं बटन दबाता हूँ। दैट्स फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन, दैट इज जीरो डिले कम्युनिकेशन, which is basically, that is not how the universe works. So therefore the way it actually occurs is that you switch on the light, you switch on the current, the first vectors to come alive are the vectors that are the closest to the plane, because क्या होगा कि जब वहां पे जो करंट जो प्लेन है, मेटल का प्लेन होगा ना, करंट चलाना है तो मेटेलिक शीट होगी, सिल्वर का प्लेन है मान लो, तो तुम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, तो वो चार्ज, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहीं कहीं बैठे हुए थे तो उनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी स्पेस में, जब वो चलेंगे तो वो जब चेंज होगी तो वो चेंज भी प्रोपोगेट होगा पहले उस फील्ड में टू द फर्स्ट रीजन ऑफ स्पेस। अगर ऊपर से तुम देख रहे हो, इसको तुम ऊपर से देख रहे हो तो ये करंट कैरिंग प्लेन है, तो सबसे पहले ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है इनके वेक्टर्स ऑन होंगे ऐसे डिंग करके, फिर जब ये ऑन हो गए तो अब ये इंफॉर्मेशन इनको, ये भी रीजन है कि हम वेव्स पढ़ते हैं, और इसी सेंस में ये चीज वेव है कि फिर अगला प्लेन ऑन होगा, फिर अगला प्लेन ऑन होगा, फिर अगला प्लेन ऑन, और ऐसे करके ये चीज भागेगा ऐसे करके एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक सेंस में जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे तो एक प्लेन इधर भागेगा एट द स्पीड ऑफ लाइट, एरोज को ऑन करता हुआ, टिंग 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 टिंग, एक प्लेन इधर भागेगा एरोज को ऑन करता हुआ।
जहां तक वो प्लेन पहुंच गया है वहां तक रोशनी हो गया होगा, उसके आगे अभी भी अंधेरा होगा। जस्ट लाइक इफ यू रिमेंबर, हमने साउंड का पढ़ा था, पिस्टन चलता है फिर एक प्लेन भागता है, डेंसिटी बढ़ाता हुआ। यहाँ वेव ऑन स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ऊपर उठाते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ इमेजिनरी लाइन, या मैक्सिकन वेव में एक इमेजिनरी प्लेन भागता है जो लोगों को उठा रहा होता है, राइट। सिमिलरली एक प्लेन भागेगा इधर और एक प्लेन भागेगा इधर, and if you look at it a while later, maybe a few seconds later, then you would find that this is your current carrying plane. Then there is an abstract plane which has reached here and an abstract plane which has reached an equal distance on the other side. And if this is at t equals to 5, then this distance is what? 5c. c is the speed of light. And that distance is also 5c. और इस 5c के सैंडविच के अंदर जो है सारे एरोज ऑन हो चुके होंगे, लाइट पूरा ऑन हो चुका होगा, मतलब फील्ड ऑन हो चुका है, द फील्ड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट इसके बाहर अभी अंधेरा है, उधर भी फील्ड जो है इस सैंडविच के अंदर, तो फील्ड का सैंडविच बन गया है जिसमें फील्ड चालू हो चुकी है या ऑन हो चुकी है, सेटअप हो चुकी है, जैसे भी तुम बोलना चाहते हो, लेकिन उसके बाहर जो है अभी अंधेरा है। द फील्ड इज नॉट somewhere here which is further than 5c, there is no field yet. This guy cannot put a magnet here and the magnet will not experience anything, even though the current is already on the plane, the current has been switched on, but since he is sitting at a distance further than that, there is no magnetic field here yet. The information that the current has been switched on is coming at him at the speed of light, and he's just far away enough that his region of space has not sort of realized that the current has been switched on, right? तो ये जो चीज चल रही है, जो भाग रहा है एट द स्पीड c दोनों तरफ, यही चीज है EM वेव। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो प्लेन का लिया है, बिकॉज प्लेन के केस में एक्सप्लेन करना इजी है, बिकॉज द ज्योमेट्री इज सिंपलर, बट द सेम थिंग हैपेंस विद एवरीथिंग। इफ यू हैव अ वायर, मान लो वायर है, यही रीजनिंग इस पे तुम लगा के देखो, वायर है जिसमें करंट है, तुमने बोला मुझे कि अगर इसमें करंट है तो इसका फील्ड क्या होगा, रिंग्स होंगे जो ऑल द वे तक इंफिनिटी तक जाते होंगे, लेकिन जब ये ऑफ है तो सब जगह अंधेरा होगा, तो जब इसको ऑन कर देंगे तो कैसे फैलेगा वो इफेक्ट? हाउ डज दिस फील्ड कम इनटू एग्जिस्टेंस? बाय द सेम लॉजिक, except the geometry is slightly tricky, so that the first ring to come to life will be the one closest, फिर then this one, फिर then this one, और ये ऊपर भी हो रहा है, तो बेसिकली सिलेंड्रिकल फ्रंट भागेंगे हर तरफ, सी से सिलेंडर भागेगा एक ऐसे लाइट अप करता हुआ, just like if you look at it from the top, it will exactly look like ripples on the pond, and they are actually, if you are being a little philosophical or poetic, they are actually ripples in a pond. The pond is vacuum, the ripples are electromagnetic, and they are propagating in that. जैसे रिपल्स ऑन अ पॉइंट तो पार्टिकल्स से मोशन हो जाता है, तो इसमें फील्ड में कौन सी चीज का मोशन हो रहा है फॉर द ट्रांसमिशन? किसी चीज का नहीं हो रहा है, फील्ड जो है अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। सर, इफ देयर इज नो पार्टिकल फिजिकली फॉर ट्रांसमिशन, व्हाई इज देयर डिले? आई टेल यू, बेसिकली योर क्वेश्चन इज दैट हर वेव में जो प्रोपगेशन होता है वो किसी ना किसी इलास्टिसिटी और इनर्शिया के कारण होता है, तो वैक्यूम में कौन सा इलास्टिसिटी और कौन सा इनर्शिया है? तो भाई मैं बता रहा हूँ, अभी वही लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पता चलता है कि वैक्यूम का अपना एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इलास्टिसिटी है और एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इनर्शिया। Even though there are no physical particles there, the fields behave as if they are elastic and as if they have inertia. So that is captured in the 4 laws of electromagnetism, which I'll tell you in a second. But I hope ये तुम लोग समझ में आ गया होगा कि EM wave जो है हम किसको कह रहे हैं? An EM wave is a traveling disturbance in the EM field, in the E field or the B field. Just like a sound wave is a traveling disturbance in a pressure field, an EM wave is a traveling disturbance in the electromagnetic field. अब इसमें एक पार्ट और भी है जो मैं बोलूंगा बाद में, we'll come to it in a second, बट तुम और सोचो इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, just to get used to this idea of this being a wave. मान लो तुमने क्या किया, तुम्हारा जो स्विच था तुमने उसको ऑन किया, 1 सेकेंड ऑन रखा और फिर ऑफ कर दिया। अब क्या दिखेगा तुम्हें यहाँ पे? पहले ऑफ था हमेशा, फिर तुमने ऑन किया, 1 सेकेंड ऑन रखा, फिर ऑफ कर दिया। फिर ग्रेजुअली वापस वो बंद होना चालू होगा।
पहले जस्ट किसी वीडियो को रिवर्स में देख रहे हैं। करेक्ट, नहीं रिवर्स में नहीं देख रहे, ऐसा नहीं दिखेगा जाता वो, नहीं मतलब ऑन जाता किया हुआ ऐसे, उसका रिवर्स वीडियो देखा वैसा होगा ना? नहीं रिवर्स नहीं, sorry, उल्टा होगा। हाँ रिवर्स नहीं होगा। पहले दो प्लेन्स निकलेंगे जो ऑन करते हुए जाएंगे लाइट को, डिंग 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 डिंग, ठीक है। जब तक वो दोनों सी डिस्टेंस पहुंच गए होंगे 1 सेकंड में, तब तुम इसको ऑफ कर दोगे, तो एक और प्लेन निकलेगा दोनों तरफ जो ऑफ करता हुआ जाएगा, टिंग 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 टिंग, और जो आगे प्लेन है जो ऑन करता हुआ जा रहा है वो तो भाग ही रहा है। इट्स एग्जैक्टली लाइक व्हेन यू रेज योर हैंड ऑन अ स्ट्रिंग, देन यू सेंड अ पल्स व्हिच इज रेजिंग द स्ट्रिंग, then you hold it there for a second and you bring it down, then you send another pulse which is bringing them down, तो एक pulse create हो जाएगा। pulse is a localized disturbance. The same thing will happen here. Switch it on, you will send two planes which are running in both directions switching on the field. 1 second later you switch off, so then you send another two planes which are switching off. तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा करंट कैरिंग प्लेन है और एक प्लेन आगे भाग रहा है जो ऑन कर रहा है, उसके पीछे एक प्लेन भाग रहा है जो ऑफ कर रहा है, और इसकी विड्थ जो है वो c है क्योंकि 1 सेकंड में c डिस्टेंस, और इसके बीच में ही केवल फील्ड ऑन है। तो बेसिकली फील्ड का एक सैंडविच बन गया है जो ट्रैवल कर रहा है, फील्ड पैकेट या पल्स। दिस इज अ EM पल्स, दिस इज द काउंटर पार्ट टू। इफ यू थिंक ऑफ दिस एज अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, देन इफ यू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फील्ड ऑन अ ग्राफ, then no field, no field, no field, no field, lot of field, lot of field, lot of field, no field, no field, no field. तुम लोग समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ सर। Yes, sir. Right? This represents the strength of B there. And if this is the Z direction, then this is Z. XY प्लेन तो हमारा करंट प्लेन है और Z में प्रोपोगेट कर रहा है। तो अगर तुम फील्ड का स्ट्रेंथ को प्लॉट से दिखा रहे हो तो ये पल्स है, EM का पल्स है, जैसे वेव ऑन अ स्ट्रिंग में होता है, और उधर भी एक जा रहा होगा दूसरी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी एक चीज है। व्हाट इफ, ये सारा वेव का रीजनिंग है, व्हाट इफ there are two current carrying planes, you have one current carrying plane, I also have a current carrying plane at the two ends of the universe. You will switch on your plane and then switch it off after a second, so you will send a packet towards me of c width जिसमें फील्ड उस तरफ है, वो मेरी तरफ आ रहा है भागता हुआ। मेरे वाले में करंट, मेरे तुम्हारे में भी ऊपर चला था, मेरे में भी ऊपर चला है, लेकिन मेरे करंट के रिलेटिव ये पीछे वाला पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। तो मैं जो पैकेट भेजूंगा उसमें फील्ड इस तरफ पॉइंटिंग होगा। यू ऑल फॉलो फील्ड सैंडविच, वो तुम्हारी तरफ भाग रहा होगा सी का स्पीड से। व्हाट हैपेंस व्हेन दीस टू मीट? सुपरपोजिशन। Superposition. This is basically, if you plot it on this again, then your pulse, if we represent that as the positive direction of the B field, then your pulse looks like this and my pulse looks like this, and then they will meet, and you know what happens, जितना ये एक दूसरे से मीट कर जाएंगे उतने में अंधेरा हो जाएगा फिर से। समझ गए क्यों? तो लाइट लेंगे तभी ऐसा बोल रहा ना? क्या बोल रहे हो? लाइट अज्यूम कर रहे हैं ना, हाँ अंधेरा हाँ होगा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। वो मतलब थोड़ा मिक्स्ड एनालॉजी टाइप हो गया कि लाइट का ही डिस्कशन हो रहा है, लेकिन मैं लाइट को एनालॉजी की तरह यूज कर रहा हूं। बट आई मीन टू से, यस सर, if फील्ड चला जाएगा। the vectors are lit up, then when these two sandwiches merge into each other, जितना ये merge कर लिए उतने में अंधेरा हो जाएगा और जो lit up region है वो thinner हो जाएगा। एक स्प्लिट सेकंड ऐसा भी होगा जब पूरे यूनिवर्स में फिर अंधेरा होगा, which is when these two are right on top of each other, और फिर ये दोनों दूसरी तरफ से निकलेंगे और भागेंगे। So it's like proper superposition that you study in waves, right? On the contrary, अगर मैं नीचे करंट चलाया होता तो मेरा ये सैंडविच में फीड उधर ही होता और ये उधर भाग रहा होता, तुम्हारा में भी उधर होता और ये इधर भाग रहा होता, तो ये पल्स भी ऊपर होता, ये पल्स भी ऊपर होता। तो जब सुपरपोजिशन होता तो बीच में जब ये मिलते तो वहां पे डबल ब्राइटनेस हो जाता फॉर अ व्हाइल, और फिर दे वुड गो आउट, कम थ्रू ईच अदर, गो थ्रू ईच अदर, राइट? नाउ द पॉइंट इज दैट ये तो एक थोड़ा artificial example in the sense of that I'm just
suddenly changing the value of the field abruptly. But what if this switch is not an abrupt on off? Let's say the switch is now can take smoothly any value. तो मैं कैसा भी शेप बना सकता हूँ, तुम लोग समझ रहे हो? मान लो और रियोस्टैट की तरह ना? हाँ, मतलब मैं इसको शेप कर सकता हूँ ना. मान लो कि मैंने क्या किया कि मेरा एक करंट कैरिंग प्लेन है और मेरा स्विच जो है अब वो वैल्यूज ले सकता है. आई डोंट हैव टू स्टॉप एट ऑन एंड ऑफ, आई कैन स्टॉप एट एनी. तो मान लो मैंने क्या किया, पहले ऑन किया, 1 सेकंड ऑन रखा, 1 सेकंड मैंने उसको बी वैल्यू पे रखा, बी नॉट पे. मान लो 0 से बी नॉट के बीच में कुछ भी ले सकता हूँ मैं, 0 से करंट आई नॉट, ठीक है, जैसे बी नॉट वैल्यू का फील्ड प्रोड्यूस होता होगा. तो मैंने क्या किया, पहले उसको बी नॉट आई नॉट बाई 2 पे लिया, 1 सेकंड रोका, फिर आई नॉट पे लिया, 1 सेकंड रोका, फिर आई नॉट बाई 2 पे लिया, 1 सेकंड रोका, फिर 0 पे ले लिया. तो जो सैंडविच निकलेगा उसका विड्थ पहले कितना होगा? अग्रीड? Yes. जिसमें 3 रीजन होंगे. बीच के इधर के रीजन में, बीच के रीजन में फुल बी नॉट साइज के एरो होंगे. इधर के रीजन में बी नॉट बाई 2 बी नॉट बाई 2 और इधर के रीजन में बी नॉट बाई 2 बी नॉट बाई 2 साइज के एरोज होंगे. अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तो बेसिकली तुमने एक पर्टिकुलर शेप बना लिया है. यू हैव शेप्ड द वेव. द वेव हैज अ शेप नाउ. इट इज नॉट सिंपली अप और डाउन, इट इज नाउ अ शेप दैट यू कैन चेंज. तो अब तुम कम्युनिकेशन कर सकते हो, सारी की सारी EM कम्युनिकेशन विच इज ऑल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, सब कुछ इसी से काम करता है कि हमने बेसिकली वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करते हैं, उनको शेप करना सीख लिया है. और अब हमने कोड बना दिया होगा. मतलब ये तो ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, वो ये तो मैं एक बता रहा हूँ, मान लो टॉय लाइक वर्जन, कि अब हम अगर पहले से डिसाइड कर लें कि इसका मतलब ए होता है, इसका मतलब बी होता है. ये तो तब है जब यू आर लिमिटेड टू ओनली द वैल्यूज बी नॉट बाई 2 एंड बी. तो इसके लिए वो बाइनरी और हेक्साडेसिमल सब बनाना. कुछ भी बना लो, बट ऑब्वियसली इन रियल लाइफ वी आर नॉट सिंपली लिमिटेड टू सम डिस्क्रीट वैल्यूज, वी हैव अ कंटिन्यूअस. अब मान लो कि तुम इसको जो है स्मूथली बिटवीन बी नॉट एंड माइनस बी नॉट एंड 0 वेरी करा सकते हो. और मान लो ये स्प्रिंग लोडेड है, तो तुम समझ रहे हो कि क्या निकलेगा तुम्हारा करंट कैरिंग प्लेन से? कैन यू? ऑसिलेशंस निकलेंगे. बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा, फिर जब ये ऊपर पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव ऐसा निकलेगा. तुम्हारा बी फील्ड जो है ऐसा दिखेगा. यू गाइस फॉलो व्हाट आई एम सेइंग? Yes. ऐसा ऐसा जा रहा होगा और ऑब्वियसली पूरा सैंडविच है वो. इफ यू कनेक्ट दिस यू गेट अ कर्व, राइट? इट्स अ साइन फंक्शन बिकॉज योर source or your oscillator is doing simple harmonic motion. And if you can make a sine wave, you can make any function because of the Fourier transformation. You already know that. So therefore, अब हमें कोई ऐसा discrete technology का जरूरत नहीं है. We can basically send any wave we want in this fashion, traveling at the speed of light. This is basically an EM wave. It is only part of the story. Another factor is that when there is a changing magnetic field, there is also perpendicular to it a changing electrical field. So the true picture is that there is not only a magnetic field which is changing, but perpendicular to it there is also an electrical field which is changing, and the whole thing is propagating. In one plane you have a variation of magnetic field, the other plane you have a variation of the electrical field. They go hand in hand. One field changes producing the other field, then the other field changes producing the first field back, and thus they tumble forward forever. Fundamentally this is what light is. It's two mutually perpendicular electric and magnetic fields oscillating and thereby producing each other. तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कि तुम लोग आगे पढ़ोगे वैसे EMI में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड and a changing electrical field produces a magnetic field. But that is essentially how light propagates forwards. ठीक है, बट ये मैंने तुम्हें बेसिक उसका प्रिंसिपल समझा दिया कि EM वेव क्या होता है. अब नेक्स्ट टाइम जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म्स जो हैं वो मैं बता दूंगा और जो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चिन्मय, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वो था ना, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन वेव्स आल्सो मल्टीपल टाइम्स.
Fourier transformation, it's Fourier, F-O-U-R-E-E-R. It's that any arbitrary shape can be made up of a number of sine functions of the appropriate frequency and the appropriate amplitude. You can make up any arbitrary shape with a single raw material, sine function. You just have to scale them and put them on top of each other, and you can handcraft any signal you want. Basically, every function is sine function in disguise. Sine, cosine, whatever you want to call it. The magnetic field does not break space symmetry is because the space symmetry is already broken by the current. With an electrical field coming out from charge, if you have a charge plane, if you are in front of an infinite plane which is charged, charge is static, right? Charge has no direction. If I say what is the direction of this charge, there is no direction. It's just a paste, like a paint. So then if you are at some point here in front of it and you say iska koi effect hai, abhi main baat kar raha hu without using any of the terms, right? No electric field, no magnetic field. Even let's not call this charge. There is some effect on the plane. There is some property of the plane, a non-directional property of the plane, which produces a directional property at this place. Then what could be the direction of this directional property? Could it be here, here, here? It can't be parallel to the plane, because if it's parallel to the plane, then how did you decide on that direction? Like if you say it is here, then why not here? In front of a plane, here, this direction is no different from this direction, because you can always look at it like this, right? So then you can't really pick a preferred direction parallel to the plane. It's an infinite plane. It has infinite extent. Then if you say this is how it should be, then why not this? But then if this is how it should be, then why not this? So there is no preferred direction parallel to the plane. Therefore, it can't be in any of the directions parallel to the plane. Then the only preferred direction is away from the plane. This is a unique direction, which is invariant under rotation, right? With a current carrying plane, you can have something like this, because the current itself is a direction. So now you have broken the symmetry. अब ये plane है, लेकिन इसमें नीचे एक property already ऐसे है. So then this saying that some effect here is in this direction is unique. This is a different direction than this, because here it's aligned with that arrow. Here it's perpendicular to that arrow with a certain right hand thumb rule connection, which is also different from this, which is also different from this. So now this is all these directions are not equivalent. They are all different from each other, because already नीचे plane पे एक direction है. So this produces no contradiction कि भाई हमारा field इस तरफ हो सकता है. Do you understand? All right. ठीक है, खत्म करते हैं. हाँ. Sir, I have a doubt. मतलब, can I read out the question and can you solve it? It's from Bay Optics. हाँ बोलो. A light, sir, so basically there is a spherical surface and उसका अंदर वाला part reflecting है, ठीक है. A ray is initially traveling along a chord AB of that sphere, whose length is the chord's length is √5 + 1 divided by 2 times r, where r is the radius of the cylinder. Find how many after how many reflections of the from the inner wall of the cylinder the light ray will be incident back at the point from where the chord started from. नहीं, I didn't really understand properly. Can you WhatsApp me the question? हाँ sir, I'll do it. Wait. ठीक है, हो गया. सर लीव कर सकते हैं. क्या चीज? क्लास खत्म हो गया, लीव. हाँ, क्लास खत्म हो गया, मैं बंद कर रहा हूँ. थैंक यू सर. ऑलराइट, बाय बाय.